Hello my dear students, this is Swati Chawla. Welcome to my series for CBSE Class 12 Computer Science with Python. In this video, we are going to discuss various objective type questions from the topic text file. As you know students, कि questions are very limited. कि आप कितने ही questions की practice कर लो, there is no end. But if your concepts are clear, so then you can attempt any question. So to clear your concepts, I will provide you the link of those videos in my description also for detailed explanation, and practice questions is also necessary simultaneously because उससे आपकी habit बनेगी किस type के questions exam में आपसे पूछे जा सकते हैं. So in this video we will cover those questions. Let's start with our first question. What is the default mode to open the text file? Read, write, append and R plus. And you know my concept or my funda ki to clear your concepts, I will definitely try my level best to implement all the concepts practically also. जितना हम practically करेंगे उतने आपके concepts easily clear होंगे. ठीक है, let me just open one file here with name, let's suppose random.txt. This file is already stored in my hard disk, I think. अब यहाँ पर हम mode नहीं specify करते हैं, ठीक है? Let me just show you that random.txt file. ठीक है, my name is written in this file. Let me just close it now. अब मैंने यहाँ पर कोई mode को specify नहीं करा. And I am trying to read the data from a file. f.read, सारा का सारा data read करना है. उसके बाद I have to close my file. Now see here, it is completely without error free program, means it has read the data from the file. और यहीं अगर मैं फाइल में से डेटा को राइट करना चाहूँ, suppose I am writing Python, तो then it will show you the error not writable because default mode कौन सा है बेटा? Read mode. अगर मैंने कोई मोड नहीं लिखा है तो that means read mode is there. So we cannot write the data from in the file. So the answer of first question is R. Default mode to open the text file is read mode. Now moving on to the next question. Again very important concept is there in this question. To open a file, आपको एक file given है C drive में test.txt name से. For appending the data, we use कौन सा option use करेंगे, ठीक है? And in MCQ questions, बेटा there is a trick to score कि आपको जो incorrect option लगे उसको eliminate करते चले जाओ, ठीक है? At the end you will get be with means one or two options जिसमें आप अगर doubt है तो maybe two options और otherwise one option जो आपका correct होगा. अब now बेटा we have to open the file in append mode. Append data मुझे करना है. So last option is incorrect, ठीक है? क्योंकि अब मुझे पता लग गया कि जो मेरा ये वाला default mode है that is read mode. तो ये last option is incorrect. Read write भी नहीं होगा. This is also incorrect. अब first और third में मेरा A mode लिखा हुआ है. अब आगे का syntax चेक करते हैं कि कहीं इसमें तो कोई mistake नहीं है. अब देखो file equals to open C drive में test.txt और इसमें ये बैकस्लैश करके लिखा हुआ है. This is the example of my raw string. Let me show you one thing practically. Suppose मैंने यहाँ पर कोई अपनी एक फाइल ओपन करी, ठीक है? जो आप इसका पाथ देखो, let me just zoom it. यहाँ पर सिंगल स्लैश आ रहे हैं, ठीक है? That means जो भी मेरे फाइल का पाथ होगा उसमें मेरे पास सिंगल स्लैश होता है. बट यहाँ पर आपका कौन सा लिखा हुआ है? डबल स्लैश. बट वो एरर तो नहीं है, ठीक है? अब एक मेरा लिखा हुआ है रो स्ट्रिंग. अब इसमें डिफरेंस देखो. लेट मी जस्ट क्रिएट अ सिंपल टेक्स्ट फाइल ऑन द डेस्कटॉप, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. इसका नेम दे देते हैं, लेट्स सपोज टेस्ट डॉट टीएक्सटी हो गया, ठीक है? नाउ आई एम राइटिंग सम टेक्स्ट इन दिस. हेलो. इन नेक्स्ट लाइन आई एम राइटिंग वेलकम, पाइथन प्रोग्रामिंग and class 12. This I have written and now I am saving this file. अब मैंने इसको क्लोज कर दिया. अब
नाउ इफ आई वांट टू चेक द पाथ ऑफ दिस फाइल, जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस, प्रॉपर्टीज पर क्लिक करोगे, ये उसका पाथ है बेटा, सी ड्राइव, यूजर्स एंड देन यूजर और उसके अंदर डेस्कटॉप। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया। नाउ आई हैव ओपन माई पाइथन, यहाँ पर उस पाथ को मैंने पेस्ट कर दिया। इसके बाद मैंने अपनी फाइल का नेम लिख दिया, दैट इज test.txt। यहाँ पर हम फाइल को रीड मोड में ओपन करते हैं। ठीक है, ये तो मेरा एज इट इज पाथ है जो उसमें होता है। लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट दिस की क्या ये एरर शो करेगा? यस। ठीक है, द रीजन बीइंग दैट, अब ध्यान से सुनना, जो ये मेरा \t है ये किसको रिप्रेजेंट करता है पाइथन में? टैब स्पेस को। इसी तरीके से मेरे पास कुछ और एस्केप सीक्वेंस है, \n है फॉर न्यू लाइन। ठीक है, तो उसको ये पाइथन रिजर्व करके रखता है। तो उसको ओवरराइट करने के लिए मेरे पास 2 मेथड्स हैं। या तो मैं यहाँ पर हर एक में // यूज करूँ, ठीक है, तो ये आपको एरर शो नहीं करेगा। ठीक है, इट हैज रीड द डेटा और उसने उसको क्या कर दिया? प्रिंट कर दिया। और सेकेंड मेथड, अगर मैंने सिंगल स्लैश लेना है तो स्टार्टिंग में r स्पेसिफाई कर दो। दिस r रिप्रेजेंट्स द रॉ स्ट्रिंग। रॉ स्ट्रिंग मींस व्हाटएवर इज रिटन इनसाइड द कोड इट विल बी ट्रीटेड एज इट इज। उसका अगर पाइथन से कोई मीनिंग है तो उसको कंसीडर नहीं करना है। लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट दिस नाउ। नाउ आल्सो इट इज शोइंग द आउटपुट। ठीक है, द करेक्ट ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर A and option number C. Both are correct. Now moving on to the next question. To read the next line of the file from a file object infi, INFI, ये आपको file object given है। अब इसमें से आपने next line को read करना है। For that which function is used? Read function के bracket में और लिखा हुआ है, this is incorrect. Read function will read the entire data from the file. Read line function is used to read the next line from the file. Or read lines function will read the all the lines but in the form of a list. वो list की फॉर्म में आपको रिटर्न करेगा और सारी की सारी लाइंस को वो रीड करेगा। But read line function will return the data in the form of a line. Means line by line वो रीड करेगा और होगा किसकी फॉर्म में? स्ट्रिंग की फॉर्म। The read lines method returns dash, जो मेरा read lines फंक्शन है वो किस फॉर्म में डेटा रिटर्न करेगा? अभी हमने रीड करा था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं रीड, लेट सपोज रीड लाइन लिख देते हैं पहले। ठीक है, ये एक लाइन रीड करेगा और इसको हम स्टोर कराते हैं किसी वेरिएबल में। लेट मी जस्ट टेक अ वेरिएबल हियर विद नेम डेटा और अब मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया डेटा। ठीक है, अब ये मेरी एक लाइन रीड करेगा और दिस की वो हर एक लाइन के बाद मुझे एक एक्स्ट्रा \n भी रिटर्न करके देता है। अब अगर मुझे नेक्स्ट लाइन रीड करनी हो, मैं ये चीज दोबारा लिख दूंगी। ठीक है, तो वो आपके नेक्स्ट लाइन रीड कर देगा। ये एक्स्ट्रा क्या कर रहा है? \n भी वो रिटर्न करके देता है। अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पर आप एंड आर्ग्यूमेंट लिख दो इस तरीके से। तो जो एक्स्ट्रा \n वो रिटर्न कर रहा था वो उसको रिटर्न नहीं करेगा। अब बात आती है किस टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं प्रिंट टाइप ऑफ डेटा, तो किस फॉर्म में रिटर्न कर रहा है बेटा? स्ट्रिंग के फॉर्म में। और यही अगर मैं रीड लाइंस लगा दूं, लेट मी जस्ट इरेज दिस, रीड लाइंस फंक्शन, ये क्या करेगा? हम सिर्फ लिखेंगे डेटा। अब देखो इसने मुझे डेटा किसकी फॉर्म में दिया? लिस्ट की फॉर्म में। ये मेरी लिस्ट है और हर एक लाइन मेरी लिस्ट का एक एलिमेंट है। अब हम क्वेश्चन पर आएंगे। रीड लाइंस फंक्शन मेथड रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ लाइंस, मींस वो मुझे लिस्ट रिटर्न करके देगा किसकी? लाइंस की। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फंक्शन इज यूज्ड टू रीड ऑल द कैरेक्टर्स फ्रॉम द फाइल? अगर मुझे फाइल में से सारे कैरेक्टर्स रीड करने हैं, so for that we are having the read function. Which function is used to read a single line from a file? एक लाइन रीड करने के लिए कौन सा है बेटा? रीड लाइन फंक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अभी हमने प्रैक्टिकली भी कर लिया। What would be the data type of a variable data in the following statements? इसमें आपका जो है डेटा
डेटा टाइप क्या होगी? अगर मैं रीड फंक्शन से डेटा रीड करूंगी तो डेटा टाइप विल बी स्ट्रिंग. लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस. लेट्स टेक दिस कलर, स्ट्रिंग. अगर मैं रीड 10 कैरेक्टर्स कर रही हूँ तो भी उसकी डेटा टाइप क्या होगी बेटा? स्ट्रिंग. रीड लाइन फंक्शन भी मुझे किसकी फॉर्म में डेटा रिटर्न करके देगा? स्ट्रिंग की फॉर्म में. और रीड लाइंस मुझे किसकी फॉर्म में रिटर्न करके देगा? लिस्ट की फॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, which function is used to write all the characters? अब अगर मुझे अपनी फाइल में सारे के सारे कैरेक्टर्स को राइट कराना है, for that we are having the write function. write all, write chars, write char, इस नेम से मेरे पास फंक्शन है ही नहीं. Which of the following is not a valid mode to open a text file? कि अगर मुझे टेक्स्ट फाइल को ओपन करना है तो आउट ऑफ दिस विच वन इज इनवैलिड? अब बात किसकी हो रही है बेटा? टेक्स्ट फाइल की. तो टेक्स्ट फाइल में आपका ये ए बी मोड नहीं आ सकता. दिस इज फॉर बाइनरी फाइल्स. सो दिस इज योर इनवैलिड मोड. R plus, W plus, R, these are your correct options. Now moving on to the next question. Again important concept is there in this question. What is the difference between R plus and W plus mode? ठीक है. Let's eliminate the incorrect option. First one is no difference. This is incorrect कि there is a difference between R plus and W plus mode. ठीक है. Now next point. In R plus mode, the pointer is initially placed at the beginning of the file, and for W plus, the pointer is placed at the end of the file. Let's just check this practically also, because अगर ये concept practically नहीं करेंगे तो आपके concept clear नहीं होंगे. ठीक है. अब देखो, अगर ये मेरा data है मेरी file में, file name is test. Now let me just open my Python ideally. अब इसको मैंने R प्लस मोड में ओपन करा. ठीक है. अगर मैं यहाँ से इसको कर दूं f.read, अब मेरा फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? In R plus mode, the pointer is initially placed at the beginning of the file. अगर मेरा पॉइंटर बिगिनिंग पर है तो ये सारा का सारा डेटा रीड करेगा. ठीक है. दैट मीन्स उसका फर्स्ट पार्ट करेक्ट है. अगर मैं इसको W प्लस मोड में ओपन कर दूं तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो ये कुछ शो नहीं कर रहा. दैट मीन्स मेरा पॉइंटर एंड पर होगा तभी वो उसके आगे कुछ भी रीड नहीं कर रहा. ठीक है. तो दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज करेक्ट. इन R प्लस मोड द पॉइंटर इज इनिशियली प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, एंड फॉर W प्लस द पॉइंटर इज प्लेस्ड एट द एंड. नेक्स्ट बेटा सी पार्ट. In W plus mode, the pointer is initially placed at the beginning of the file, and for R plus, the pointer is placed at the end. This is incorrect. Next option beta D. In case of R plus mode, if the file not exist, it will raise an error. Let's check this. ये आपको पता है वैसे भी कि if I have to open the file in read mode, तो उसका फाइल का पहले से प्रेजेंट होना जरूरी है. ठीक है. लेट मी जस्ट डिलीट दिस test.txt फाइल. ठीक है. इस नेम से फाइल आपके पास नहीं है एंड यू आर ट्राइंग टू रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल. तो व्हाट इट विल शो? फाइल नॉट फाउंड एरर. ठीक है. और यही अगर मैं राइट के केस की बात करूं. ठीक है. अब राइट फंक्शन किस लिए राइट मोड इज यूज्ड टू राइट द डेटा इन अ फाइल. अब फाइल इस नेम से नहीं है. एज यू कैन सी डेस्कटॉप पर मैंने वो test.txt को डिलीट कर दिया. अब मैं इसमें कुछ राइट करा देती हूँ. लेट्स सपोज ABC राइट करा दिया. इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं क्योंकि अब मुझे डेटा को रीड नहीं करना. ठीक है. नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस. अब यहाँ पर तो कुछ नहीं शो होगा, बट वो आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी test.txt और उसमें वो डेटा आ जाएगा जो हमने राइट किया. तो दैट मीन्स इन केस ऑफ R प्लस मोड, इफ द फाइल नॉट एग्जिस्ट इट विल रेज द एरर. और कौन सा एरर रेज करेगा बेटा? फाइल नॉट फाउंड एरर. whereas in W plus mode it will create a new file if it does not exist. And last option is depends upon the operating system. This is incorrect. I am having Windows operating system. If you are having any other operating system, you can try it that also.
Now moving on to the next question. Which of the following statements are true regarding the opening modes of a file? अब first देखेंगे, when you open a file for reading, if the file does not exist, an error occurs. This is true. अभी हमने करा भी था, if we have to open if we are opening the file for reading, that file must exist on your hard disk, otherwise it will raise the error file not found. Next point, when you open a file for writing, if the file does not exist, an error occurs. This is incorrect. अगर फाइल हम राइटिंग मोड में ओपन कर रहे हैं और फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो देन इट विल क्रिएट द फाइल विद दैट नेम. नाउ थर्ड ऑप्शन, व्हेन यू ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग, if the file does not exist, the program will open an empty file. This is also incorrect. Next option, when you open a file for writing, if it does not exist, a new file will be created. This is correct. Next option, when you open a file for writing, if the file exists, the existing file is overwritten with the new file. कि writing mode में क्या होगा? If you are having the content already written in the file and if you have opened the file in W mode, the previous content will be overwritten with the new ones. So the correct options are A, D and E. Now moving on to the next question. The other name of the file object is, file object कौन सा होता है बेटा? This one, this F. इसको हम और क्या बोलते हैं? File handle. Now next question number 13. To close and open file, dash method is used, close method is used. And function के बाद ये brackets लगाना जरूरी है because this is the identification कि मेरा function है. To read all the file contents in the form of a list. List की form में अगर मुझे read करना हो सारा का सारा content, so for that I am having the read lines method. Next question, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में काफी बार पूछे जा सकते हैं. Write a Python statement to open a text file story.txt in read mode. अब फाइल को ओपन करने का सिंटेक्स लिखना है. For that we are having the open function. कौन सी फाइल ओपन करनी है बेटा? story.txt, कोमा, कौन से मोड में? रीड मोड. ठीक है. Next, similar to this, write a statement in Python to open a file book.txt. इतना as it is, this will be as it is. book.txt to write the new content in a file as well as preserving the old content. कि आपने new data भी लिखना है और previous data को भी आपने preserve करना है. For that we are having the append mode. Now next question. To read two characters from a file object FOBJ, the command should be this. ठीक है. अगर जो read function में जो argument है, it represent how many characters more you want to read from the file. So to read two characters, we have to pass the argument 2 in the read function. Next, question number 18. Observe the following code and answer the questions. ये आपको एक my data name से फाइल given है, append mode में ओपन कर रखा है और यहाँ पर क्लोज कर रखा है. What type of file is my data? टेक्स्ट और बाइनरी. अब एक्सटेंशन गिवन नहीं है बेटा. बाय डिफॉल्ट कौन सी फाइल होती है? टेक्स्ट फाइल. और आप इसका मोड देखो, बाइनरी फाइल होती तो ए बी लिखा होता. ठीक है. और हमने वैसे फाइल का पूछा तो बाय डिफॉल्ट आपकी कौन सी फाइल्स होती हैं? टेक्स्ट फाइल. नाउ नेक्स्ट, फिल इन द स्टेटमेंट 1 टू राइट एबीसी इन द फाइल माई डेटा. अब जो माई डेटा फाइल है उसमें आपको स्टेटमेंट 1 लिखनी है, ये वाली. यहाँ पर क्या आएगा? ठीक है. फाइल में डेटा को राइट कराने के लिए फाइल हैंडल का नेम क्या है? फाइल डॉट राइट फंक्शन इज यूज्ड टू राइट द डेटा इन अ फाइल. और क्या राइट कराना है? ए बी सी. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड द कोड गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस. ये कोड आपने रीड करना है. story.txt फाइल है. दिस वी हैव ओपनड इन द राइट मोड एंड we are going to write the text in the file by and then we are closing the file.
if the file story.txt contains good before execution, what will be the contents of the file after execution of this code? अब फाइल को हमने राइट मोड में ओपन किए तो whatever will be the previous content, it will be overwritten with the new content. So अब आपके टेक्स्ट फाइल में क्या होगा? सिर्फ बाय. अगर ये अपेंड मोड में ओपन करते तो गुड बाय विल गेट प्रिंटेड, और गुड बाय में फिर स्पेस नहीं आता. ठीक है. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? test1.txt गिवन है, दिस वी हैव ओपनड इन द रीड मोड, फिर हमने डेटा रीड करा, फिर 5 कैरेक्टर्स रीड करे, उसको प्रिंट करा. नाउ यू विल से मैम इसमें तो test1.txt फाइल हमें गिवन ही नहीं है, तो 5 कैरेक्टर्स कहाँ से रीड करके प्रिंट कर दें? उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी. जस्ट रीड दिस क्वेश्चन अगेन वेरी केयरफुली. रीड मोड में हमने फाइल को ओपन किया. ठीक है. f1.read, this read function will read all the data from the file. अब जब ये सारा का सारा डेटा रीड कर लेगा तो मेरा पॉइंटर कहाँ पर होगा? एट द एंड ऑफ फाइल. लेंथ फंक्शन क्या करेगा? इट विल काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन दैट, वो आपके साइज वेरिएबल में स्टोर करा देगा. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. आफ्टर दैट f1.read 5, जब रीड फंक्शन से सारा का सारा डेटा रीड हो गया, मेरा पॉइंटर एंड पर है. ठीक है. तो अब जब मैं 5 कैरेक्टर्स और रीड करूंगी तो उस फाइल में तो कुछ है ही नहीं, वो तो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा. ठीक है. तो यहाँ पर आपका क्या होगा? कुछ भी प्रिंट नहीं होगा. इट विल नॉट डिस्प्ले एनीथिंग इन द फाइल. इफ यू वांट आई कैन शो यू दिस प्रैक्टिकली ऑल्सो. अब इसको हम ओपन कर लेते हैं रीड मोड में. ठीक है. लेट मी जस्ट शो यू द कंटेंट ऑफ test.txt फाइल. दिस इज माई फाइल. इसमें ये ABC लिखा हुआ है. ठीक है. अब मैंने क्या करा? यहाँ से प्रिंट f.read, ये क्या करेगा? सारा का सारा डेटा रीड करके प्रिंट कर देगा. अब अगर मैं इसके बाद इसमें से दोबारा फाइल में से कुछ रीड करना चाहूं, कोई भी फंक्शन लगाओ बेशक, सपोज मैंने 1 लिखा, तो वो आपको एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करके दे रहा है. ठीक है. आपका कोई भी आउटपुट नहीं आएगा. और यही अगर मैं इसको यहाँ पर 1 कर दूं और यहाँ पर भी 1 कर दूं तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं रिटर्न करेगा. फर्स्ट टाइम उसने फर्स्ट कैरेक्टर रीड करा, सेकंड टाइम उसने सेकंड कैरेक्टर रीड करा. और 1 कैरेक्टर क्यों रीड करा? क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या पास करा बेटा? 1. ठीक है. तो रीड फंक्शन मेरा क्या करेगा? सारा का सारा डेटा रीड कर लेगा, उसके बाद मेरे पास कुछ भी रीड करने को नहीं होगा. That's all for this video of text file based questions. If you are having any doubt, you can write it in the comment section. If you like my video, do press the like button, share your views in the comment section, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.